Hello students and viewers. You are once again welcomed in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today I will discuss a very small topic, that is ATP, adenosine triphosphate, which is very much useful in competitive exams, as well as it will help you in increasing your basic knowledge. So let us start with this, and what is ATP, how it works, and how it is synthesized. Some of few basics will be discussed in this video. So let us start with it. First of all, here are some keywords that you are supposed to know that will help you in every day-to-day classes or every topic which you deal with metabolism. This is applicable for all the students from class 9 to 12th, and here it will help you in preparing your competitive exams as well. So first we will see some of the keywords, that is ATP. And what is the full form of ATP? It is adenosine 5' triphosphate. Generally it is read as adenosine triphosphate. A for adenosine, T for triphosphate, P for phosphate. So adenosine triphosphate. ADP is adenosine diphosphate. Definitely in coming slides, when we will discuss the structure, you will come to know why it is known as adenosine 5' triphosphate or adenosine diphosphate. Then coming on to ATPase. ATPase is an enzyme. It is an enzyme which carrying build up and breakdown reactions of ATP. It carries build up and breakdown reactions of ATP. That is, this is the enzyme. ये वो enzyme है जो help करता है ATP के breakdown में as well as इसको build करने में. जो enzyme लगता है ATP के synthesis में बनने में या उसके टूटने में, उस enzyme को ATPase कहते हैं, और वो ATPase है. फॉस्फोराइलेशन जो है ये एक वो प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है. इट इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल is called phosphorylation, and it increases its potential energy. उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को वो इंक्रीज करता है. सो हियर फॉस्फोराइलेशन इज नथिंग बट इट इज़ द एडिशन ऑफ एक फॉस्फेट ग्रुप का किसी भी एक मॉलिक्यूल में एडिशन, और उससे उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन. Coming on to energy coupling, that is, energy coupling occurs when energy produced by one reaction or system is used to drive another reaction or system. माने इसका कि energy coupling एक वो प्रोसेस है जिसमें जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दूसरे रिएक्शन के लिए वो एनर्जी यूज़ होती है, तो उस प्रोसेस को हम एनर्जी कपलिंग कहते हैं. डेफिनेटली ये हम जब आगे पढ़ेंगे इस प्रोसेस, ये एनर्जी कपलिंग को हम डील करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप में, जब हम आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे. जब भी हम पढ़ेंगे दिस टॉपिक विल बी इंक्लूडेड. वो आप वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी कपलिंग क्या होती है. यानी सिंपल मोटा मोटा इसमें ये होता है कि जब किसी एक रिएक्शन, एक सिस्टम से एनर्जी बनती है, तो वो एनर्जी दूसरे रिएक्शन को या ड्राइव करने को, दूसरे रिएक्शन को एक्ट करने के लिए, दूसरे रिएक्शन या सिस्टम को ड्राइव करने के लिए वो एनर्जी यूज़ होती है. तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं एनर्जी कपलिंग. Then coming on to endergonic, what is endergonic reaction? Endergonic reaction describing a reaction that absorbs heat energy from its environment. ये वो रिएक्शन होता है जिसमें कि अपने एनवायरनमेंट से वो सिस्टम या वो रिएक्शन जो है हीट लेता है. एंडरगोनिक, एंडर टू टेक इन, तो एंडरगोनिक यानी हीट लेना फ्रॉम एनवायरनमेंट. Then what is exergonic? Exergonic is describing a reaction that releases energy, that is heat, energy in form of heat into its environment. तो वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है और एनवायरनमेंट को रिटर्न होती है और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, इसको हम एक्सर्गोनिक कहते हैं. What is hydrolysis? It is a chemical process of decomposition involving the splitting of a body by the addition of water. यानी कि पानी कोई एक ऐसा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक वाटर को एडिशन से क्या होता है, स्प्लिट होता है. डिकम्पोजिशन, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ
हियर दिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है डिकम्पोज होने का। किसी भी बॉन्ड के ब्रेकिंग के दौरान अगर कोई पानी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और उससे कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट हियर। Coming on to the main topic, main point, that is adenosine triphosphate, and let me discuss some points, very basic points regarding ATP. ATP is called as universal carrier. It is known as universal energy carrier या एज वेल एज एनर्जी करेंसी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एटीपी में, और ये स्टोर्ड एनर्जी जो है बहुत सारे कामों में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एटीपी का यूज़ होता है, और ये बेसिक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है, एनर्जी कैरिंग स्टफ है। इसको हम एक एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की। सेल के पास अगर एटीपी है तो किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का रिएक्शन ड्राइव कर सकता है, रिएक्शन हो सकता है। इसलिए एटीपी को कहा जाता है यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन जर्मनी बाय कार्ल लोहमन इन 1929 फ्रॉम मसल टिश्यूज। वेरएस इसको एटीपी को एनर्जी कैरिंग नेचर इसका जो डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था फ्रिट्ज लिपमन ने, और इसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1953 में वो रेसिपिएंट थे नोबेल प्राइज़ के। और ये इसलिए था कि इन्होंने एटीपी को डिस्कवर किया था। एटीपी का नेचर क्या नेचर था उसका? एनर्जी कैरिंग, यानी ये वो मॉलिक्यूल था जो कि एनर्जी को अपने साथ कैरी करता था और वेरियस एक्टिविटीज़ में ये एनर्जी यूज़ होती थी। दैट्स वाई फ्रिट्ज लिपमैन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एटीपी साइकिल। ATP is a ribonucleotide formed by combination of purine। अब ये ATP किसका बना है? एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी हम आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे। ATP का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक्चुअली ATP क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन का, और वो भी कौन सी प्यूरिन? एडिनाइन। प्यूरिन, एडिनाइन एज वेल एज शुगर। कौन सी शुगर? पेंटोज। पेंटोज शुगर कौन सी शुगर? जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो पेंटोज शुगर, प्यूरिन, एडिनाइन और 3 फॉस्फेट्स इसमें होते हैं। और ये पेंटोज शुगर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। सो ATP इज अ राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में ATP क्या है? ATP में क्या होता है? ATP में किस चीज़ का, ATP का कॉम्बिनेशन क्या है या कॉम्पोजिशन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्यूरिन, विच प्यूरिन? एडिनाइन, as well as pentose sugar, which pentose sugar? Ribose, and 3 phosphates. So now let us move on and see the structure of the ATP here. देखिए यहाँ पे आप देखिए, बहुत आराम से इस चीज़ को स्टडी कीजिए। ATP में हमने बोला ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्यूरिन, पेंटोज शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट्स। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए जो बेसिक इसका जो ढांचा है वो किसका है? वो राइबोज शुगर का है, पेंटोज शुगर का। दिस इज पेंटोज शुगर। इसमें आप देखिए हर एक कार्बन डेजिग्नेटेड है अपने नंबर से। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड 5। तो 5 कार्बन, जिसमें कि एक कार्बन रिंग से बाहर होता है। ये कार्बन 5 कार्बन का जो शुगर है ये पेंटोज शुगर जो है वो राइबोज है। इसके साथ जो अटैच्ड होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होता है। शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है, और कौन सा बेस है? वो है प्यूरिन, और प्यूरिन कौन सा है? एडिनाइन। तो यहाँ पे 9th नंबर के नाइट्रोजन के साथ 1st नंबर कार्बन शुगर का ऐड होता है, और किस चीज़ से ये कनेक्टेड होता है? इट इज़ कनेक्टेड बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। हियर दिस इज न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे बताया गया कि ATP क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों राइबोन्यूक्लियोटाइड? बिकॉज द शुगर हियर इज राइबो एंड इट इज अ न्यूक्लियोटाइड बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ अ बेस एज वेल एज इट हैज फॉस्फेट विथ अटैच्ड टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ATP का स्ट्रक्चर है जिसमें बेस है एडिनाइन,
एज वेल एज शुगर है राइबोस, और इसके साथ अटैच्ड है फॉस्फेट्स। लेकिन यहाँ पे देखिए एटीपी है, दैट मीन्स ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं फॉस्फेट के? कितने हैं? 1, 2 एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ये भी मैं बता दूं आपको कि फॉस्फेट्स जो हैं इसमें जो तीनों हैं वो 3 कैटेगरी के फॉस्फेट्स हैं। इसमें 3 टाइप के फॉस्फेट्स आप बोल सकते हैं, और ये 3 टाइप के फॉस्फेट्स जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं, ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जैसे पहले फॉस्फेट और दूसरे फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। सिमिलरली सेकेंड फॉस्फेट और थर्ड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। और ये जो आपके जो फॉस्फेट्स हैं इनको असाइन किया गया है, एक स्पेसिफिक नेम के साथ असाइन किया गया है, और ये है अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा जो है वो लेबल्ड है जो कि बिल्कुल शुगर के नज़दीक है। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा एंड दिस वन इज़ गैमा। तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा ये 3 फॉस्फेट्स हैं, और जो सबसे नज़दीक फॉस्फेट होता है, जो शुगर के सबसे नज़दीक फॉस्फेट होता है, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं वो है अल्फ़ा। और जो बीटा और गैमा फॉस्फेट जो है, द बॉन्ड उसके बीच का है बीटा और गैमा, यानी दिस एंड दिस, बीटा एंड गैमा फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ये जान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज़ बीटा एंड गैमा फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने देख लिया, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एंड again we will move on to the next part. I hope so कि this part is very much clear to you students. Now coming on to next. अब देखिए वो तो एटीपी था जिसमें कि 3 फॉस्फेट थे। सिमिलरली एडीपी में 2 फॉस्फेट्स होते हैं। देर इज़ 1 हाई एनर्जी बॉन्ड इन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो क्लियर है आपको, क्योंकि एटीपी में जब आप देखते हो एटीपी तो इसमें आपके 3 पी होते हैं, तो 3 पी में आपको 2 बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट और सेकेंड फॉस्फेट के बीच में और एक सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट के बीच में। लेकिन एडीपी में आपके पास 2 फॉस्फेट होते हैं, तो केवल उसमें एक ही हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और वो कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड जो होते हैं वो एटीपी में होते हैं। तो एडीपी में 1 हाई एनर्जी बॉन्ड एंड इन एटीपी 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ATPs 3 फॉस्फेट्स आर लिंक्ड इन सीरीज, जो कि आपने देखा अभी सीरीज में है, और वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं फॉस्फेट्स, और इन्हीं बॉन्ड्स के रप्चर से रिलीज होती है बहुत सारी यूजफुल एनर्जी। जब ये फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड जो है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जब ये ब्रेक होता है, जब इससे फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इस दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो बहुत यूज़फुल होती है, और इसीलिए हम एटीपी को कहते हैं एनर्जी कैरियर्स, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर्स, या फिर हम इनको एनर्जी करेंसीज कहते हैं। ठीक है, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड इन एटीपी, इनको हम इंडिकेट करते हैं इस सिंबल से, जिसको हम स्क्विगल्स कहते हैं। 3 phosphate bonds in ATP are known as, अभी आपको बताया अल्फा, बीटा एंड गैमा। द थर्ड बॉन्ड यूजुअली ब्रेक्स डाउन, और ज़्यादातर जो ATP का कन्वर्जन होता है ADP में, जब ATP कन्वर्ट होती है ADP में, तो उसमें जो थर्ड बॉन्ड है, यानी बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गैमा, ये फॉस्फेट्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और वो ब्रेक होने के लिए, या फिर यूजुअली यही ब्रेक डाउन भी होता है, और सिंथेसिस के लिए यही सिंथेसाइज भी होता है, और इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है ATPase। इन एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम ADP टू ATP, डोनर फॉस्फेट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब जब ADP से एक और P ऐड होता है, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब इसमें ऐड होता है ADP में, तो वो बनता है ATP। और जब ATP ब्रेक होता है ADP में कन्वर्ट होने के लिए, तो भी एक फॉस्फेट रिलीज होता है, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है कोई भी तरह के काम करने के लिए। तो यहाँ पे ATP ब्रेक होता है ADP में, और एक
फॉस्फेट में, और इसी ब्रेकडाउन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं, हमारा बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए. So here I hope so the fundamental is clear. Now let me explain you the conversion, the ATP ADP cycle. इससे आपके फंडामेंटल्स और क्लियर हो जाएंगे. Here it is, see, यहाँ पे आपने देखा ये ADP है जिसमें एक राइबोस शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजन बेस है एडिनाइन, और इसके साथ आपके 2 फॉस्फेट हैं. ठीक है, तो इसलिए ये हो गया ADP, और ADP जो है वो कन्वर्ट होता है, ये ADP जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ATP. इसके साथ लगता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू ATP, जहाँ की 3 फॉस्फेट हो गया. ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आपके, ये ATP बनने का जो प्रक्रिया है वो कई 3 मैकेनिज्म से आता है जिससे कि ATP जनरेट होती है. सब्सट्रैट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया, या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस. तो ये सब सोर्सेज हैं, या तो क्लोरोप्लास्ट में या तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सिंथेसिस ऑफ ATP होता है, यानी कि इन प्रोसेसेस से जो है एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है, और ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP. अब ये ATP जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फेट जो है एक रिलीज होता है, और ये बॉन्ड जो है सेकंड और थर्ड फॉस्फेट के बीच का ब्रेक होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ ATP कन्वर्ट हो जाता है इनटू ADP, एंड दिस साइकिल गोज ऑन. सो आई होप सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर. और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइक आपके सेल के एक्टिविटीज़ में हो गया, आपके सेलुलर एक्टिविटीज़ में हो गया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हो गया, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट है, तो इन सारे एक्टिविटीज़ में ये हेल्पफुल हैं. सो यहाँ पे और सारे केमिकल रिएक्शंस में ATP के साथ जब वाटर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे व्हेन इट कंबाइंस विथ वाटर, यू विल गेट व्हाट, इट हाइड्रोलाइजेस ATP टू ADP, और ये रिवर्सिबल है. ठीक है, रिवर्सिबल मतलब कि फिर से ATP हमको वापस मिल सकता है. वो वापस कैसे मिलता है, जब ATP हाइड्रोलाइज होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ATP सिंथेसिस हाइड्रोलाइज हो गई, और उसके साथ फॉस्फेट रिलीज हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई. ADP यही जो ADP बनता है ये दोबारा कन्वर्ट होता है इनटू ATP, और इसके लिए एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ फ्री एनर्जी लगती है, और फिर से यहाँ पर ATP कन्वर्ट हो जाता है. तो ये साइकिल जो है ये ओवरऑल चलती रहती है. और एक चीज़ ये भी बता दें आपको कि ATP जो है वो अनस्टेबल है, वो बहुत समय तक रहती नहीं है, वो इसलिए उसको बोलते हैं ATP एक्ट्स एज अ शॉर्ट टर्म कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी इन सेल. क्यों? क्योंकि हम ATP मॉलिक्यूल्स को बहुत समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है. वो इमीडिएटली वो ATP ADP साइकिल होती है, और उसी साइकिल में ATP से रिलीज एनर्जी जो है वो ATP से हाइड्रोलिसिस से वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेरियस केमिकल रिएक्शंस में हेल्पफुल होती है. और ये ATP जो है ये यूज़ होती है, ATP की जो एनर्जी है वो यूज़ होती है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो. तो यहाँ पे ATP वही सोर्स है या वही एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है. अब जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज़ यूज्ड बाय सेल. देखो किन किन एक्टिविटीज़ में काम होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, यानी मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट, इस पे भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो चीज़ों का परमिएबल है, जो चीज़ें नॉन परमिएबल है, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है, ये ATP से होती है. फिर सेल मूवमेंट्स में भी होती है, सेल के अंदर जो मूवमेंट है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एंड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ATP. अभी आपको मैंने बताया कि ATP जो है वो जनरेट होती है 3 मैकेनिज्म से. एक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और इसमें क्या होता है कि ये हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप, इसमें ATP ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये इट जनरेट्स ATP,
transferring a high energy phosphate group from an intermediate phosphorylated metabolic compound. और ये जो एक्टिविटी या ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ये साइटोसोल में होता है. इट अकर्स इन साइटोसोल. साइटोसोल क्या है? जो साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन है उसके अंदर ये होता है. इस तरह से इस मैकेनिज्म से एटीपी जनरेट होती है. दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और ये आपको मिलेगा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तब, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है यानी फूड जो है वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एटीपी. तो ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है और ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. और तीसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो एज द नेम सजेस्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स में होता है और यहाँ पे एटीपी जनरेट होती है इन द और प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज में भी होती है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से ये 3 ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि एटीपी जनरेट होती है. और ये एटीपी जो है ये करेंसी है, एनर्जी करेंसी है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ उनको ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एटीपी से आती है. और ये एटीपी बनती है एडीपी से, और यहाँ पर ये साइकिल जो है पूरे समय चलता रहता है. और ये एटीपी स्टेबल नहीं है इसलिए इसकी एनर्जी तुरंत कंज्यूम की जाती है. सो आई होप सो स्टूडेंट दिस वाज अ वेरी ब्रीफ एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इट विल हेल्प यू थ्रू आउट. और ये जब मेटाबॉलिज्म के चैप्टर्स भी आपके जब आएंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट होप सो तब तक क्लियर रहेगा. एंड आपके पास बहुत और भी चीज़ें आने वाली हैं related to metabolism, so this is going to help you out. So students, if you have liked this basic lecture, kindly you like it or you share it as well as subscribe it. And if you have subscribed my channel, you can click the bell icon so that you get the notifications prior, very early and first as soon as I upload a lecture. So thank you students and keep going with the lectures. Thank you.